very loving mother who was very strong, and no matter what was going on at home, she was our rock. Like the girls or even the boys, if it's a girl, she'll start working in their houses, and if it's a boy, maybe he'll start working out. I was 14 at the time. Father was like कि अब तुम जाओगे, and more so डर उस समय उस बात का लगता था कि लोग क्या सोचेंगे. So yeah, I've always felt guilty for that, but I'm sorry, there was no way I could do anything about it. It was very clear that the first thing that happens when money comes or we are able to afford would be education, and then if money allows, we'll have food, good food to say. Yeah, never restaurant food, good food maybe meant having paneer at home. क्या remember वो 5 रुपए वाली छोटी मैगी आती थी हमारे लिए, like that was the biggest thing, क्योंकि उसके साथ हम रोटी खाते थे, तो वो हमारी सब्जी की जैसे अगर सब्जी नहीं बन रही है किसी दिन तो हम रोटी और मैगी रोटी खाते थे, एंड उसको डिवाइड करना was like कि उसकी स्कैरसिटी में ही उसका मजा था. स्कूल भी पहले साइकिल से जाओ, फिर उड़ान क्लासेस के लिए साइकिल से जाओ, फिर आकाश क्लासेस के लिए साइकिल से जाओ, एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे बाय 8:30 PM when I used to reach home, I was dead tired. I did not even have the energy to eat. Describe a sibling in one word. You go first. She's very controlling. ठीक है, even after coming from a lot of economic hardship, if you work hard when you are required to, if you do a few right things, तो overall आप जहाँ से स्टार्ट किया था आप उससे बहुत आगे पहुंच चुके होंगे. You would have built a life for yourself that you are proud of. Hi everyone, welcome back to a new video on my channel. For everyone who's new here, I am Riya and this is my younger brother Ritvik. Very recently we did a video where we talked about Ritvik's academic journey, professional journey, how he prepared, his decision to quit his job and everything else, and also a lot of interview experiences, all the interview experiences he had. But today we thought to have a more personal conversations, not just the highlights and the achievements, but who we are as people. What has life been for us, the struggles, the small wins that meant everything to us, our values and why they are the way they are. And the purpose of this video is, if there's anything you can find that you relate to, or maybe you find some inspiration to get going one day at a time, or maybe you just find two people who are similar to you on the internet. That's what we are going to try to do here today. So hi Ritvik, first of all congratulations. Thank you. And how are you feeling right now? So in the last video where we left was the results were still not out yet. The interviews. Yes, you had your Indore interview and none of the results were out. Yes. And we were expecting Ahmedabad, Bangalore, Calcutta. So how are you feeling right now? I'm feeling great. I have converted IIM Bangalore. I got rejected at IIM Ahmedabad. That was a hard pill to swallow. I cried a lot. You really cried? Yes. Oh, so he was not with me at that time. So after that, like the good news from Bangalore came, and I was really happy. My mother was really happy. My sister was really happy. I and my friends were really happy. You were looking forward to plan your life, as in which city you're going to be. And now that we'll be in the same city, how are you feeling about that? And you've already seen the campus. You've already seen my life. So the first feeling was that for most of the people, it would be a novel experience to enter those gates. They've looked at it in reels, in 3 Idiots. But for me, I've been on campus many times. I know every place in the campus. I know the places, but I haven't lived the journey. You've not had your own memories. I haven't had my story there. I haven't learned in those classes. I've just seen it. So you've been wearing the IMB hoodie since the last 3 years. Now they'll be your own hoodies. I've been wearing the IMB varsity jackets, but it's my time to own it now. I want to start from the very beginning, like absolute childhood years. How was it growing up? We can go one by one. You can ask me something where I can ask you something. How would you describe your childhood? You go first and then I'll. I would like to believe that our childhood was relatively similar. Like the first 4-5 years, our parents were never very discriminating between a boy and a girl. So I would like to believe the first few years were same. We were playing in the same places, same siblings, same cousins, same family. Everything was same. The differences would start when we started to grow up a little, started to have our own friends. I think that differences would start there. We even started with the same school, I guess. Yeah, our first school was same and our last school is going to be same. Yeah, so we have been to similar places. When we were in 2nd or 3rd standard, that would be the time then when we started to have our own friends, like good friends. And then it starts to shape our personality and we become different personalities. Very loving mother who was very strong, and no matter what was going on at home, she was our rock. That okay, we're having financial struggles or personal struggles at home, like some relative, a lot of fights going on at home, but nothing came in our way. Yes. We got our meals on time. We were locked in a room that, okay, don't get bothered. You study, you do your homework, and I'll take care of everything. Our mother, she's not very educated, but she made sure that like in whatever little way
it was possible for us to make a study, even counting, Spellings, whatever she counting, knew. whatever she knew. She tried to like sit with us, give us time. Our father was mostly absent, like in the sense of he was working. He was not there to like sit and make a study. She tried her best. Absolutely. And I think that one of the reasons why she tried so hard was because she saw in her life what happens if you don't study. You don't have your own money, if you don't have the independence to make your own life decisions. And she from day one was like, Riya, especially for me because I'm a girl, but equally so for you, that you both will go and educate yourself so that there are immense opportunities for you so that you can make your own life decisions. It was not just her life that she saw. Yes. It was everybody around her. Every woman was dependent, and not just our house, the houses around us. It was the same story, that like the girls or even the boys, if it's a girl, she'll start working in their houses, and if it's a boy, maybe he'll start working out. Yeah, but very menial jobs. Very menial jobs, but they'll start working out 12, 13, at the age of 12, 13, and the females would be taking care of their younger siblings most of the time, or the household work. So she saw, I have to be the stopping point, and the next generation it ends with us. It ends with her. Yeah. And one more thing about our father, though he was not very present to teach us, but his support was like immense in terms of financing everything, even though he did not earn much. Yet he made sure that we went to the best schools that he could afford. Yes, that's true. And the next thing would be that there was never a question that like we'll study or we'll maybe buy clothes, go on holidays or anything like that. It was very clear that the first thing that happens when money comes or we are able to afford would be education. And then if money allows, we'll have food, good food to say. Yeah, never restaurant food. Good food maybe meant having paneer at home. Paneer was, we only had paneer on 1st January. Once a year. Yes. Education was like the primary. The only thing that money went on. No clothes, no going out, no restaurants. Despite I think our fees being very low, I think at that time it would be 1,000 rupees for both of us. 1,000 rupees per month. Yeah, around 2005, 2008, I would say, and 1,000 rupees. But still, the people around us, the families, wouldn't send their children to school. And especially not their daughters. Especially if the child was a girl. Discrimination based on the gender, because sometimes the boy would go to a private school and the girl would go to a government school. This was very prevalent. Yeah, not Ranchi, maybe it's more about the economic strata. We studied in the same school, and then the next common thing we did was we learned painting. So the first thing that, other than education, that we did was we used to go to art classes, drawing classes on every Sunday. The only luxury we had other than school. Yes. And I remember, like initially it was good, but after a few years it became a burden. It became a task. I used to dread Sunday. Do you think we learned a lot? Not exactly the painting, but it helped us in our handwriting, I guess. Your handwriting is good, not mine. So help us in our handwriting. For me, the part that I did not like was that after a point it had become very mechanical. So the sir was very busy, and every day you land in, you are given a painting, you have to copy it. So I did not like that part. So we stopped like around when we were in 5th. I would have been in 3rd or 4th standard, and she would have been in 5th standard. Yeah. So we stopped going to drawing classes. That was right about the time when I started to play cricket. That was the time when I was very interested in cricket. And I started to go to a coaching for cricket. I was always on the ground. So was that cricket coaching paid or? And the coaching was paid, but it was very menial. And I was really interested at that time, like apart from studies. And as I said, I quit. We had quit drawing classes. So I started to play cricket, and the coaching was minimal. Things like the bat and the kit costed us some money. And I remember like Mama. Maternal uncle helped us buy those things. I was really excited whenever even a small thing was bought, even a ball was bought for my cricket. I was really excited. And that was around the time when I started getting more into studies. I remember like I was not a good student till class 3-4, but then I got a very transformational teacher who made me realize the value of education. And that was the time when I started becoming the class topper. And I started, like when he went to play cricket, I started studying more. To say how I did in cricket, I would say I did not do great in cricket. I remember sometimes Riya and my father came to watch some of our matches, a few of my matches, but I did not play. I was not really great. I was a wicketkeeper batsman, and I continued it till the 8th standard, I guess. 8th standard, I represented my district. Yes, I remember. So like the best opportunity that I
could get out of passion of cricket was I represented Sahibganj district in under 14 cricket tournament, and I did not perform very well. I scored, I think, 3, 5 and then a 7, and I was ruled out. Our team even I remember that call. And I even remember our team was ruled out after a few matches, and that was the time, I think it was 8th standard, when I knew I wouldn't be continuing a lot further. And simultaneously, I remember 8th and 9th was right about the time when I had to shift to photography, and that is how I could not balance both. So we'll get to the photography story. Mm-hmm. Yeah. So you are in class 8, I'm in class 10. Again, the only thing going on in my life is studying for boards. I was like, I remember how badly I wanted to top in school and how devastated I was when I came second in my school, not first. I cried and all that drama that I did. School nahi jayenge, photo nahi khichayenge. I've let down myself. And she was really into studies. She said, we won't have a TV in our house. Yeah, no, not that we won't. We had a TV, but I was like, please TV mat chalao, main pad rahi hu, mat TV dekho. Kyunki ghar bahut chota tha, like our house was very small. So if someone, like we have 2 rooms, if someone is watching TV in one room and just the smallest room next to it where I study, the volume was disturbing. Yeah, even on those 2 rows, one room was basically the office for our father. So we had 2 rooms. We had just one room to say for our family. So one room, the outside room, was a office for our fathers, where like the people who wanted to get their videos edited would come, and we would be sitting in the one room that we had, and that was it. That was literally it. So I was like, Papa, like I cannot ask Papa to not edit the videos because that's his bread and butter. But at least TV to mat chalao. Yeah, and I remember she came second. That was a really good percentage, but she came second and she was not happy. No, not happy. I was devastated. Yes, like, ab mere kya hoga zindagi mein? I've come second after studying from class 6 to class 10 so diligently. Gave your 10th standard, you wanted to excel in it. So how did the decision to go, let's say, for a JEE exam or something like that came? Like, because it would be a 10th standard before even the board's examination that you had to choose like which exam you want to give. Honestly, I think it all came from our father. So he was the one who had told me about 2 things. One was engineering from IIT and the other was UPSC and becoming an IAS officer. Both of these things required you to be good in studies. So I was taking care of the foundation. Now, as soon as I reached class 10, done with my boards, the next step that I'd only heard of was कि हाँ अब तो engineering करना है, engineering कैसे करते हैं? IIT जाने के लिए क्या करना होता है? JEE के लिए पढ़ना होता है. I remember she got enrolled in Akash. That was the only coaching we could afford. Yeah, cheap. And plus I got a scholarship. So, and मैं cycle से जाती थी school. Like 2 phases of my life I've worked hardest. In the last video I told you about how I prepared for my CAT along with job. The other phase now that I remember is when I had school in the morning and then I had one more government coaching program called Udaan. उसके लिए भी साइकिल से जाओ, स्कूल भी पहले साइकिल से जाओ, फिर उड़ान क्लासेस के लिए साइकिल से जाओ, फिर आकाश क्लासेस के लिए साइकिल से जाओ, and then by the end of the day, by 8:30 p.m. when I used to reach home, I was dead tired. I did not even have the energy to eat. I remember a few nights, Ma used to feed me while I was in bed asleep कि बस कुछ खा तो लो, तो पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है रात को आने के बाद. This is where I think our lives were so like थोड़ा divergent हो गया my life. वो 11th standard में आ गई and मैं 9th standard में था. I had to get into photography. Our father's business. So what happened was, this is a very like peculiar story. So it happened so that there was a wedding. There was 2 weddings in a day, and my father had to cover those with like some staff or some people that were used to work with him. And one of the person backed off right the day before the day. It was not the wedding that day. It was a haldi or some different ceremony, and he did not know what to do. And since the wedding season are so small and it's packed, so he could not get anyone else to shoot the wedding. So my father was there, and he was like कि एक Nikon की CD आती है वो पढ़ने के लिए, फोटोग्राफी पढ़ने के लिए, वो लेक्चर्स जैसे होते हैं ना, उस समय सीडीज आती थी. तो शी वाज लाइक कि इसको वीडियो को देखो एक बार. तो लाइक ऐसे शाम को अगर जाना है तो पापा ने बोला कि दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड एक इसको देखना वीडियो. आई सैट एंड आई वाज वाचिंग कि कैसे कैमरा ऑपरेट करते हैं. कैमरा आई थोड़ा था कि घर पे कैमरा था, तो घर पे ऐसे ऑटोमेटिक मोड में हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, फ्रेम्स ऐसे बना रहे हैं, कुछ अच्छे शॉट्स लगे, वो होता था. बट कुछ आता नहीं था कि
लाइक व्हाट इज द निटी-ग्रिटी। तो वो मेरे को पता 3 घंटे का वो देखा, 2 से ऐसे 5 बजे तक देखा। आई वाज 14 एट द टाइम। फादर वाज लाइक कि अब तुम जाओगे, एंड मोर सो डर उस समय उस बात का लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मैं इतना छोटा हूँ, मतलब व्हाट विल दे थिंक कि कोई ऐसा इनके साथ प्रॉब्लम है इसलिए कर रहे हैं। मतलब मेरे को ऐसा होता ना कि थोड़ी दया की नजरों से देखेंगे, क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा काम, वो आई थिंक कि लगा कि कर लेंगे। एंड देन आई वेंट, वो पहले ऐसे वेडिंग पहले वो सेरेमनी में गए, एंड बाय सरप्राइज वो रिजल्ट्स कुछ ढंग के आए। मतलब देयर वाज समवन टू गाइड, मतलब जैसे मैं फोटोग्राफी कर रहा था तो एक आदमी मेरे साथ गया जो वीडियोग्राफी कर रहा था। ही वाज एक्सपीरियंस्ड, ही वाज एक्सपीरियंस्ड, ही वाज गाइडिंग कि ये दिस इज अ इंपॉर्टेंट मोमेंट, दिस इज अ इंपॉर्टेंट मोमेंट, क्लिक कर लो। एंड that is how it started. And somehow जब वो घर फोटोज आए and they were good. So उसके बाद there was no looking back. It was like कि every wedding I was one of the photographers, या photography और at times video, जो भी करना पड़े तो I was the photographer. वो 9th standard से continuously like हर एक wedding more than 100. So उसके बाद it was like one way to support my family. And one thing that happened was like you and Papa would go for the weddings, and of course because of the gender thing, even though I was the elder child, मेरे को कभी ये नहीं बोला गया करने को. But I remember when you both were gone, तो मम्मी यही बोलती थी कि मतलब देखो ऋतिक कितना मेहनत कर रहा है, and every time I used to feel even more guilty कि हम like because I'm a girl I cannot help out and he's younger one, तो the only way I could make up for it was कि ठीक है I can study harder and maybe do something better and earn as fast as I can. So yeah, I have always felt guilty for that, but I'm sorry there was no way I could do anything about it. And मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम पे लाइक थोड़े टाइम के बाद तो यू स्टार्ट टू एंजॉय इट। कोई भी काम करो, यू वर सपोर्टिंग योर फैमिली, तो उसका तो था ही कि आई वाज सपोर्टिंग माय फैमिली, आई वाज डूइंग गुड, एप्रिसिएशन भी मिल रहा है सामने से। बट नहीं पता उस एज में क्या होता है कि इट मैटर्स अ लॉट कि लोग क्या सोच रहे हैं। लेट्स से एक मैं शादी में गया हूं एंड आई सी one of the person from my school who's there and it felt really bad कि like people are enjoying, because हमारे लाइफ में ऐसा enjoyment नहीं होता था कि हम शादी में जा रहे हैं, enjoy करने जा रहे हैं, we are having a birthday party और कुछ भी, तो वैसा कभी enjoyment खुद भी नहीं किया। एंड वैसा नहीं करके भी जैसे ही टाइम थोड़ा सा हुआ तो आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड इट वाज नॉट कि बहुत अभी जैसे वेडिंग्स होती है बहुत ऐसे होता है प्रेस्टिजियस सिनेमैटिक लैविश वेडिंग होती है एंड फोटोग्राफी बहुत ऐसे अच्छे से की जाती है। इट वाज मोर सो ट्रेडिशनल, बहुत ट्रेडिशनल सेटअप था कि एक फोटोग्राफर है, एक वीडियोग्राफर है, एंड बिहार झारखंड की शादी फिक्स तरह के शॉट्स हैं, फिक्स तरह के शॉट्स है वो कुछ पार्ट में, एंड ट्रेडिशनल बिहारी फैमिलीज हैं जहाँ पे होता है ना कैसे देखा जाता है बहुत लुक डाउन अपॉन कि ऐसे काम करने आया है, वर्क है, मतलब होता है ना कि कैमरामैन को बुलाओ इधर, इस तरीके के। इट वाज नॉट कि बहुत रिस्पेक्टेड था उस समय वो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी, तो थोड़ा बुरा लगता था। बट थोड़ा मतलब ये भी था कि आई वाज सपोर्टिंग माय फैमिली, सो दैट गिव यू पर्पस कि नो मैटर हाउ हार्ड। हाँ, वो नहीं था कि कर नहीं सकते, एंड वो भी था कि पढ़ाई छोड़ के भी कुछ टाइम करना पड़ता था। चीज थी कि 10th स्टैंडर्ड तक मेरे लिए पढ़ाई बहुत आसान था। इट वाज कि जस्ट स्कूल जाना है एंड लाइक यू वुड स्कोर वेल विदाउट स्टडी। हाँ, 10th जीपी आएगा ये पहले से पता है कि कम भी पढ़ेंगे, कुछ क्लासेस मिस भी करेंगे और सबसे टफ पार्ट था इन अ बिहारी वेडिंग यू डोंट गेट टू स्लीप। सो अगर वो कंटिन्यूअसली होता था कि लगातार आप शादियों में जा रहे हो तो आप शाम को जा रहे हो या दिन से ही पूरे दिन हो, रात को पूरा शादी कवर करोगे और सुबह 7 बजे विदाई होगी, 7, 8, 10 बजे तक, एंड देन अगर आप थोड़ी देर सोने को मिले एंड देन अगेन अगर आप नेक्स्ट डे वेडिंग जा रहे हो तो वो बहुत मुश्किल होता था कि कंटिन्यूअस आपको सोने को नहीं मिल रहा है। आई वाज यंग तो उस समय तो पता नहीं चलता था, लेकिन इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी। एटलीस्ट उस टाइम पे तो पता होता था कि थोड़ा मुश्किल होता था। दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट आई थिंक, बट दैट कंटिन्यूड एंड रिया का 12th स्टैंडर्ड आ गया। तो दिस साइकिल वाज गोइंग। मेरा 10th स्टैंडर्ड आया, 10th वाज मतलब चिल, बट 10 वाज लाइक बहुत विदाउट एनी एफर्ट। पूरा फोटोग्राफी को छोड़ के मेरी स्कूल लाइफ वाज रियली गुड। I really enjoyed, मतलब मेरे friends, I'm glad कि I have friends, मेरे my age is 25 and I have friends जो 22 years से मेरे friend हैं। 3 years छोड़ के, मतलब वो जब स्कूल नहीं गए थे उसको छोड़ के 22 years से we have been together some friends। तो वो 10th standard में भी same friends थे, अभी भी same friends हैं, तो life was really great in school। Coming to my friends, even I have 2 to 3 friends, my closest bestest friends who are from the very school जहाँ पे हम class 1 से साथ में, prep से साथ में थे। Though like I've lost touch with some of them, not as close as he is, but like yeah, 2 or 3 friends are very very close to me। Then मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ, मेरा रिजल्ट आया था 10th CG पे था, एंड देन इसका 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट, 12th स्टैंडर्ड, एंड इसमें भी था कि जहां ये पढ़ती थी 10th स्टैंडर्ड तक वी चेंज स्कूल, तो वहां पे पैसे लगते थे नए स्कूल में जाने के लिए। आई गेस 40K JVM शामली वाज द स्कूल। इट वाज लाइक रांची में वो एक प्रेस्टिजियस स्कूल था, द बेस्ट स्कूल प्रोबब्ली 11th 12th के लिए। तो वी बोथ वांटेड टू गो एट आवर टाइम्स। इवन दैट 40K amount was such a big amount for us
कि उस पर होता था डिसीजन कि पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, वुड डिपेंड ऑन कि किस स्कूल पे पढ़ेंगे एंड क्या ये एडमिशन फीस दे पाएंगे। थोड़ा उस समय सिंस आई जॉइंड द बिजनेस तो थोड़ा उस समय अच्छा चल रहा था, कंसिस्टेंसी थी बिजनेस में, तो वी कुड अफोर्ड कि शी कुड गो टू गुड स्कूल एंड फिर कोचिंग भी जितना आकाश में अफोर्ड कर पाए। हाँ, उस टाइम योर कोचिंग स्टार्टेड इन आकाश। हाँ, तो फिर शी गिव 12th स्टैंडर्ड, शी वेंट टू द 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया एंड JEE भी दिया। ओके, सो या जस्ट pausing here, class 12 exams done, board exams plus JEE mains done, and board exams were okay, boards के लिए उतना ज्यादा पढ़ा नहीं था, तो main focus was JEE का। हाँ, and JEE mains was decent, that's how I got into an NIT, but JEE advanced, मम्मी पापा आए थे, पूरी 6 घंटे का एग्जाम था विद द ब्रेक, एंड आई रिमेम्बर कमिंग आउट, मुझे लग रहा था कि एग्जाम ओके गया है, बट देन वंस यू कम बैक होम एंड तब तक तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट का आंसर की आ चुका होता है, एंड आई एम tallying my scores, and I paper 2 maths में I've scored in negative, and I'm like अब तो नहीं हो रहा है, and overall भी score बहुत कम, मतलब से कुछ होने वाला नहीं था, प्लस मतलब क्वालिफाई नहीं करूंगी क्योंकि एक पेपर। but this would not come as a surprise I guess, because हमारे हर 15 days पे आकाश में टेस्ट होते थे, तो हमें मेरे को, मैं अपने टाइम के बारे में आऊंगा, तो बट we had a fair idea कि एडवांस तो like you start with कि भैया IIT बॉम्बे CSE अच्छा है या IIT दिल्ली CSE अच्छा है, बट वो थोड़े टाइम के बाद जब JEE की चलती है तो फिर 12th स्टैंडर्ड हुआ एंड यू गॉट इनटू NIT। हाँ, विद माय JEE मेन स्कोर एंड माय बोर्ड, आई थिंक बोर्ड टाइम 93.7, बोर्ड्स भी शायद थोड़ा देखा जाता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, इट्स बीन लॉन्ग, बट हाँ JEE स्कोर से मुझे NIT जमशेदपुर में EC मिल गया। 10th स्टैंडर्ड हुआ और मेरे को 11th स्टैंडर्ड में जाना था। I also wanted to go to the same school, JVM Shamli, and information का I think कि हमारे स्टेट में झारखंड रांची में इतना गैप है एंड फैमिलीज जहाँ पे बहुत लोग पढ़े नहीं है कि we did not know at the time कि लोन कैसे मिलता है। I remember कि she had to go to college and I had to go to school, जो नया स्कूल में 11th-12th के, वो इसका एग्जाम हो गया, क्रैक कर लिया, एडमिशन का डेट एडमिशन कराने का, and we required that 45K rupees, 45,000 that was required, and we did not have that money कि either she goes to college और I go to school, तो और हमें पता नहीं था कि लोन के बारे कि लोन में लोन बिना कोलैटरल के मिलता है, कैसे मिलता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमें। तो बहुत ऐसे डिस्कशन के बाद कि कुछ करेंगे वी डिसाइड कि शी विल गो टू अ कॉलेज, क्योंकि दैट इज अ बिगर थिंग, एंड पढ़ कहीं से मतलब होता है ना कि शी सेड कि इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है स्कूल में अच्छे। हाँ, एक और मोर थिंग है कि बिकॉज आई हैड गॉन टू द स्कूल, मुझे लगा कि नहीं, उससे ज्यादा सीखने से ज्यादा जो मैंने सीखा जिससे मेरा JEE स्कोर भी डिसेंट आया, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ द आकाश कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। तो मैंने बोला कि देखो, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गो, क्योंकि पैसे की तंगी है, ज्यादा कुछ यू विल नॉट लूज आउट, बिकॉज जो मेन पढ़ना है JEE के लिए वो तुम कोचिंग में ही पढ़ोगे। सेकंड ऑप्शन वाज कि मैं अपने ही स्कूल में जाऊं एंड दे विल गिव मी अ लाइक स्कॉलरशिप। सो माय स्कूल जिसमें मैंने 10th तक पढ़ा था, इट वाज ऑफरिंग मी अ स्कॉलरशिप, तो ऐसे स्कॉलरशिप के लालच में मैं एडमिशन ले लिया। बट 1 महीने पढ़ने के बाद पता चला कि लाइक दे वर, मतलब मेरे को व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर JEE थोड़ी छुट्टी चाहिए होती है, कुछ कोर्स छूट गया, कवर हो गया, एंड इवन इफ आई टेक अ डे हॉलीडे, वो मेरे को बाहर खड़ा कर देते थे क्लास के कि तुम छुट्टी क्यों ले रहे हो, अंडरस्टैंडिंग की JEE पार्ट। तो फिर उस समय लगा कि लाइक ये भी नहीं हो पाएगा, तो द सेकंड फिर नेक्स्ट ऑप्शन था कि पैसे तो नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो भी एक ऑप्शन था कि एक हमारे यहाँ कॉलेजेस होते हैं या लेट्स से गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जहाँ फीस वुड बी लाइक 1,000 a year। सो आई जॉइंड डोरिंडा कॉलेज, इट वाज अ कॉलेज फॉर 11th and 12th स्टैंडर्ड। वहाँ पे था कि वहाँ अटेंड भी कम करना पड़ेगा क्लासेस, लाइक हफ्ते में 1-2 दिन चले जाओ, काम चल जाएगा, and you could like अपना JEE का साथ प्रिपरेशन कर सकते थे। So I joined that. Yes, and you joined that, or and I studied at the same place, Akash. So वहीं like the best scholarship I could get was in Akash. So I also joined Akash for my JEE. And now again हमारी lives एकदम different हो गई, and I think this is the time when हमारे बीच का angst और लड़ाई तो ऐसे, हाँ, एक और part we forgot to cover, yes, कि our relations had become strained in our teenage years, मतलब जब 9-10 हम 9-10 होंगे तो 9-10 11-12 when he was in 9-10 I was in 11-12, उसी समय हमारी लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई थी। I like now I don't know कि reasons exactly क्या थे, he would know reasons because वो ऐसे गुस्सा रहता था मेरे से, पर maybe it could be money also. Do you think कि it was also? नहीं, it was not money. I think it was कि interference. I think कि उस समय थोड़ा उतना सेंस नहीं होता है बच्चों में, जब टीनेज एज जब स्टार्ट होता है 13-14, तो लगता है कि मेरी लाइफ में प्राइवेसी होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है मेरे से? हाँ, इतना क्वेश्चन क्यों कर रही है? अगर मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ तो ये इतना क्यों इंडल्ज हो रही है, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, एंड समटाइम्स यू डोंट वांट टू आंसर, मतलब क्योंकि तुम घूमने ही गए थे। और एक चीज और थी कि आवर पेरेंट्स गिव अस एब्सोल्यूट फ्रीडम, दे वुड नॉट, थोड़ा सा ओके, यू कवर योर पार्ट, आई विल कवर माय पार्ट। ऐसा नहीं था कि तुम रात को 12 बजे तक रहो, लेकिन ऐसे शाम को तुमको जाना है कहीं, तो दे विल नॉट बी लाइक कि नहीं जाओ, दे विल आस्क कि कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, बट ये नहीं कि भाई जा नहीं सकते हो। इट नेवर हैपेंड कि तुम जा नहीं सकते हो।
तो उस यहाँ पे एक डिफरेंस है बिटवीन द वे यू वर ब्रॉट अप एंड द वे आई वाज ब्रॉट अप। थोड़ा सा मतलब रोक टोक थी मेरे के लिए। कभी भी कहीं जाना है तो पापा वाज लाइक कि मैं छोड़ूंगा, अकेले तो नहीं जाने मिलता था। और हमारे फ्रेंड सर्कल में एक और डिफरेंस ये था कि तुम्हारे दोस्त जैसे घर के पास वाले थे, वेरी थोड़ा सा क्लोजर इकोनॉमिक स्टार्टअप। सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट घर के आसपास भी, जितने भी लोग थे सब घर के पास थे, तो यू कुड लाइक साइकिल से जा सकते थे मोस्ट प्रोबब्ली। और मेरे जो भी दोस्त थे वो स्कूल वाले थे एंड मोस्ट ऑफ देम वर मच रिचर देन मी। तो उनके बर्थडेज होते थे तो मतलब इतना दूर होता था कि पापा को छोड़ना पड़ता था। और बहुत ऐसे एंड आई फन फैक्ट दैट आई रिमेंबर इज कि इसके दोस्त के पार्टीज होते थे, हमारे तो बर्थडेज हमने कभी देखे नहीं, तो इसके फ्रेंड्स के बर्थडेज होते थे एंड पापा मम्मी इनको भी बोलते थे कि तुम भी खा लेना। अब खाना अगर एक गिफ्ट देंगे, जो भी गिफ्ट देंगे, अगर रिया खा रही है तो इसको भी भेज दो, ये भी खा लेगा। हाँ, I remember कि अच्छे खासे एज तक and that is also some one part I remember I did not like, मतलब एकदम पसंद नहीं था मेरे को वो चीज कि बस ऐसे चले जाओ। वहां पे उस समय बहुत इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था हम लोगों को, क्योंकि आई वुड से कि साल में एक आध कपड़े खरीदाते थे हमारे, एंड दोस पीपल लुक डिफरेंट। दैट वाज द रियलिटी कि वो लोग अलग दिखते थे। एंड इवन इफ, क्योंकि स्कूल में फ्रेंड्स, स्कूल में वी हैड यूनिफॉर्म, स्कूल में वी हैड यूनिफॉर्म, तो उतना वो कम दिखता है। बट व्हेन यू गो टू देयर होम्स तो वो पहले तो आप उनका घर देख रहे हो, उनका कार देख रहे हो, मतलब उनके मम्मी पापा को देख रहे हो। तो घर कपड़ों से भी घर वो चीज था। एक होता है कि आप कैसे दिखते हो, उसमें सबसे ज्यादा था कि हमारे घर वाले ऐसे कपड़े खरीद रहे जो 4 साल और चलेंगे, प्लस कपड़े ही एक हो रहे हैं और तुम उसको सब जगह पहन के जा रहे हो। कपड़े है ही नहीं, वो एक ही कपड़े, घर वाले कपड़े तुम पहन के बाहर, घर वाले कुछ कपड़े और बाहर जाने का एक ही कपड़ा है। जूते भी है तो मतलब ऐसे ही है। तो दैट वाज द थिंग आई रिमेंबर आई डिड नॉट लाइक अ लॉट। अभी भी ऑफ कोर्स मतलब आई डिड नॉट लाइक द पार्ट कि आई वाज द मोस्ट इल ड्रेस्ड पर्सन, बट we didn't know any better. We did at that moment, बुरा लगता था, but we did not know any better. We could not do any better. हाँ, but my friends were like good enough कि they never spoke anything about that या never removed me from the group because of that. मतलब they were समझदार enough. अभी शायद वहाँ यहाँ तक हम लोग होते भी नहीं इतने सिक्योर, और वो कि हमारी फ्रेंड्स कुछ तो मतलब होता है कि जिनकी फैमिलीज की सैलरी लेट्स से 20K भी थी, वो लोग दे वर फेयरिंग वे बेटर देन अस, दे कुड फेयर वे बेटर देन अस। ऐसा कोई फील नहीं हुआ ऐसे क्लोज इमीडिएट ग्रुप में कि लाइक तुम रहो मत या साथ में, आई विल नॉट डू थिंग्स टुगेदर, या ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। दैट वाज, फिर ये अच्छा पार्ट ये था कि मेरे फ्रेंड्स ने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि जैसे इट वाज लाइक कि तुम्हारे पास 10 है, 10 रुपीज है, 10 रुपए, मेरे पास 50 है, चलो खाने चलते हैं। इट वाज नेवर लाइक कि क्यों इतने हैं, कैसे इतने हैं। इट वाज लाइक कि जो है दिस इज व्हाट वी हैव। तो दैट वाज अ रियली गुड पार्ट। ऐसे कहीं बाहर तो जाती नहीं थी, वही साल में जो मेरे 4-5 लोगों का ग्रुप था, सबका एक बार बर्थडे होता था। मेरा कभी बर्थडे हुआ नहीं, बट वो पांचों का बर्थडे में गए एंड you have a good time. I used to look forward to किसी का बर्थडे होगा तो I'll get to go to a party and yeah, तो कभी घर आके वो क्लोज वाला इंटरेक्शन नहीं हुआ, वही जितना मिलती थी स्कूल में। और आई वुड से कि एक डिफरेंस जो और था कि हमारे अराउंड और लेट्स से हमारे अराउंड के और बच्चों में कैसे हुआ कि 8-10 घंटे तो हम स्कूल में रह रहे हैं, और अगर हम अच्छे स्कूल में रह रहे हैं, अच्छे लोगों के आसपास रहते हैं, तो वो एक्सेस ही मतलब होता है ना कि आपकी गलत चीजों करने का हैबिट, क्योंकि अगर आपको वो लोकल स्कूल भेजा जा रहा है, उस कॉलोनी के लोकल स्कूल, तो आप वहीं के सराउंडिंग में हो, वहीं के एनवायरनमेंट में हो, वहीं के लोग के स्ट्रेटा में हो। तो अगर कोई गुड आइडिया, कोई गुड चीज, अच्छी चीज, कोई स्कॉलरशिप, कोई कंपटीशन या कुछ भी हो रहा है कि अच्छा स्कॉलरशिप हो रहा है, कोई अच्छा कंपटीशन हो रहा है, तो वी हैड दैट एक्सेस। उससे बहुत मतलब स्कूल वाज द गेम चेंजर। दैट इज द रीजन व्हाई वी कुड कम आउट ऑफ I would say if two reasons would be our mother, and the second would be कि we went to English medium schools. Good private schools. Good private schools, yeah. फिर like इसका एडमिशन IIT जमशेदपुर में होता है, she moves to जमशेदपुर। मेरा 11th-12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होता है। एडमिशन तो अच्छे स्कूल में नहीं हो पाया, बट डोरिंडा कॉलेज में हुआ। आकाश, आई यूज्ड टू गो टू आकाश। वहां भी था कि मेरे टाइम भी वो था कि यू हैड टू वॉक, मतलब उस समय तो साइकिल ही फिर क्यों नहीं था, या मैं चलाता नहीं था, या तुमको साइकिल से जाना पसंद नहीं। हाँ, तो आई हैड टू वॉक। मतलब कभी कोई ऐसे फ्रेंड मिल गया रास्ते में तो ठीक है, नहीं तो 3-4 किलोमीटर हो गए, तो 3-4 किलोमीटर जाने समय वॉक करो, 3-4 किलोमीटर आने समय वॉक करो। इट वॉज डेली लाइफ कि तुम उतना वॉक कर रहे हो और जा रहे हो, आ रहे हो। उस समय भी एक तो पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई में आई वॉज नॉट पुटिंग 100% एफर्ट। एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि फिर जैसी वेडिंग्स आते थे, मतलब आपकी पढ़ाई एक दिन की भी छूटेगी, जेई के टाइम तो इतना सीरियस होता है, समटाइम्स स्ट्रेच छूट जाती थी मेरी कि मैं क्लासेस बस जा रहा हूँ, उसके बाद जो खुद से पढ़ना है उसमें मैं वेडिंग्स में हूँ। मतलब मैं क्लास है, क्लास से बाहर निकल रहा हूँ और मैं एक वेडिंग में जा रहा हूँ। मैं क्लास से पहले मैं वेडिंग में जा रहा हूँ। था कि 12th स्टैंडर्ड में मेरे खुद के पर्सनल इंटरेस्ट भी जो इसके अराउंड थे, फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी के अराउंड थे, उसमें भी मेरे नहीं था। क्यों मेरे को लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू परस्यू इट। क्यों मतलब ये समझ मेरे को नहीं आया कि नॉट द राइट टाइम, सही टाइम है टू एक्सप्लोर लेट्स से, बट मेरे सर्कमस्टेंसेस में नहीं है कि आई हैव टू वर्क एज वेल, आई हैव टू प्रिपेयर। मेरे ड्रीम्स भी बिग है, ड्रीम्स बिग नहीं है, बट सेम फॉर मी कि मेरे को भी इंजीनियरिंग के सिवाय कोई और करियर ऑप्शन नहीं था। वर्क,
जो कि बहुत टैक्सिंग था। अगर आप इतने घंटे क्लासेस कर रहे हो एंड उसके बाद आपको मतलब पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और आपने नहीं की तो नेक्स्ट डे यू आर लाइक कि वो ऐसे बढ़ता ही जाता था एंड फिर वो की चैप्टर ही छूट गया, मतलब वो क्वेश्चन ही उसके छूट गए। एक और चीज है कि मेरे को ऐसे वो जो मॉक्स हमारे होते थे ना ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, उसमें कंसिस्टेंटली मेरे को याद है मेरे को 150 160 आते थे। तो आई वाज मेंस में एडवांस में तो नहीं, एडवांस में सेम तुम्हारा ही हाल तुम्हारा साल था, बट तुमको ऐसे कुछ 150 आए थे मेरे को याद है मेंस में। मेरा बस ये था कि 150 मार्क्स में एनआईटी जमशेदपुर मिलता है। आई वाज मतलब मोर देन हैप्पी। पापा ने बोला एक बार कॉलेज जाओ, मतलब एक बार कॉलेज चले जाओ, उसका जो इंटरेस्ट परस्यू करना है करो, तुमको सिनेमेटोग्राफी करना है करो, उससे पहले शॉर्ट मूवीज बनाना, सॉन्ग वीडियोस बनाना, जो करना है करना, बट एक बार एनआईटी चले जाओ, कोई भी एनआईटी इंजीनियरिंग मतलब अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाओ। और एक और चीज, जैसे जब मैं गई कॉलेज तो ये पता चला कि एनआईटी में आपका फी वेवर्स भी होता है, जिसकी वजह से आगे चल के मतलब शुरू में तो पापा को फीस देना पड़ा टर्म ईयर 1 में, बट उसके बाद मैंने और अलग तरह के तरीकों से, एक तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स और दूसरे कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप्स भी ढूंढ लिए थे, जो कि हमें पता था कि अगर एनआईटी में एडमिशन होगा तो फीस भी थोड़ा कम लगेगी। और क्या होता है इसके बाद, एक पता था आईआईटीज होते हैं और एनआईटीज होते हैं, उसके आगे हमें कुछ भी नहीं पता था। तो ये था कि एनआईटी जमशेदपुर या तो बीआईटी मिश्रा का भी हमारे सिटी में बहुत रिस्पेक्ट था। इट वाज लाइक कि सिमिलर रैंक पे मिलता था, एकदम सिमिलर था। रांची में भी रह लो या तो जमशेदपुर चले जाओ, सब क्लोज है उसमें, क्योंकि जमशेदपुर में होम स्टेट कोटा भी होगा, तो इट इज फेयरली थोड़ा सा इजियर देन कोई और एनआईटी जाना। तो 150 मार्क्स में एनआईटी जमशेदपुर मिलेगा, ईसी इलेक्ट्रिकल कुछ भी ब्रांच मिल जाएगा, जाके पढ़ेगा। एंड 150 मतलब 140 से 160 170 कुछ भी इसके अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। फिर आता है नाउ पॉज हियर, अब लेट्स हैंग ये क्लिफ हैंगर यहाँ पे छोड़ते हैं और एक बार मेरे लाइफ पे आते हैं। मेरे लाइफ में क्या चल रहा था वो 2 साल में एनआईटी जमशेदपुर। आई रीच कॉलेज, फर्स्ट ईयर में तो फिर भी थोड़े सब्जेक्ट्स ठीक ठाक लग रहे थे, एकदम कोर, मैथ्स को छोड़ के एंड जो फ्रीडम मिली है, ओ माय गॉड। पैसे फिर भी लिमिटेड थे, बट फिर भी आप मतलब 9 बजे से पहले तक कहीं भी घूम सकते हो, दोस्तों के साथ घूम सकते हो, इतने तरह के क्लब्स और सोसाइटीज। आई ट्राई टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, जो भी करने को मिल रहा है, लिटरेरी क्लब, क्विजिंग क्लब, एल्यूमिनाई सोसाइटी, एंड मुझे बहुत मजा आता था वो सब करने में। एंड हमारी बात बहुत कम होती थी उससे। किसी ने भी, हम लोगों ने इतना एंजॉय किया था क्योंकि उस समय तक थोड़ा इंटरनेट आ गया था एंड वी कुड वॉच दोस वीडियोस, आईआईटीज के, एनआईटीज के, वहां फेस्ट होते हैं, कॉलेज होते हैं, एंड वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि वी केप्ट गोइंग, एवरीवन अराउंड आवर, मतलब हमारे सराउंडिंग में केप्ट गोइंग। वो वीडियोस जो होते थे एनआईटीज के, आईआईटीज के, फेस्ट के, मतलब क्यों बस ऐसे गया कैंपस एंड वी आर लाइक हर कुछ एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग गए ही थे एक्सप्लोर करने, मतलब दैट वाज द एम कि मतलब कुछ भी नहीं देखा है एंड वहां जाएंगे तो ऐसे डांस में पार्टिसिपेट करेंगे, चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे। And I did that for the first 2 years of my college. I thoroughly enjoyed. Now coming to your JEE results. So मेरा भी सिमिलर स्टोरी। पापा मम्मी जिस JEE मेंस ही है, तो पापा मम्मी छोड़ने आए थे एंड फिर लेने भी आए थे। 3 घंटे के एग्जाम में शायद वहीं रुके भी थे। एग्जाम देते ही इट वाज लाइक कि बहुत खराब गया है, मतलब 40 मिनट्स में अगर मैं केमिस्ट्री का सेक्शन देता हूँ, 1 आवर 20 मिनट्स हो गया और मैं केमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन तक नहीं पहुंचा एंड उसी समय पता चल गया कि एग्जाम इज ओवर, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो उस समय जो भी हो सकता है जितना किया, केम आउट एकदम क्राइंग, वहां से भी रोते रोते मम्मी पापा के पास आया और मम्मी पापा को बोल रहा हूँ कि यार पढ़ लेता, थोड़ा सा और पढ़ लेता ना तो बस हो जाता। एंड माय फादर इज लाइक कि हमेशा यही बोलते, थोड़ा सा पढ़ लेता तो हो जाता। एंड फिर घर आए, मार्क्स काउंट किए, इट वाज रियली बैड, अराउंड 90 मार्क्स आए थे मेरे को। और बेकार चीज ये थी कि एक मेरे को ये भी चीज समझी कि मेरे अराउंड सब हर किसी को यही मार्क्स आए थे, मतलब जितने मेरे फ्रेंड्स थे। मेरे को बाद में बुरा ये लगा कि मे बी यू सेड राइट कि उस स्कूल में पूरी प्रिपरेशन मैंने तो आकाश से ही करी या किसी से करी, तो मिला क्या उस कॉलेज से। तो उस समय मेरे को लगा कि इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है। मेरे अराउंड सब किसी को, इवन द इंटेलिजेंट वन, सम ऑफ द इंटेलिजेंट वंस जो इंटेलिजेंट थे, उन्होंने भी नहीं पढ़ाई करी होगी बहुत अच्छे से, आई एम श्योर, बट एग्जाम में उनके सबके ही मार्क्स 80 से 100 के बीच में सबके मार्क्स अटक गए थे। एंड इट वाज नॉट कि बस मेरा ही खराब गया, सबके गए। तो आई रियलाइज कि उस समय समझ में आया कि पीयर ग्रुप बहुत ज्यादा मैटर करता है। मार्च अप्रैल में जेई होता है, राइट अबाउट जनवरी वो टाइम था कि मेरे को पैनिक अटैक्स होते थे, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था कि अगर एग्जाम नहीं क्लियर होगा तो उसके बाद दुनिया क्या। इट वाज लाइक कि दुनिया खत्म। इतना ही पता था कि दीदी रिया किसी तरीके से एनआईटी पहुंची है, तो एनआईटी तक, ऐसा आईटी नहीं पहुंच पाई, एनआईटी होता है। अगर इससे नीचे क्या होता है कोई आइडिया नहीं था। एंड वो फिर जेई के बाद भी होते रहे, मतलब थोड़े से मतलब काम हुए और काम नहीं हुए, उस समय पता नहीं था क्या करेंगे, क्या कहाँ पढ़ने जाएंगे। इट वाज लाइक कि प्राइवेट कॉलेज मतलब
लाइफ बर्बाद, जॉब नहीं लगेगी, कौन जाता है, नाम भी नहीं पता थे किसी के, तो कहीं एडमिशन नहीं हुआ। फिर एट मैक्स आई कुड गेट वाज बीआईटी मिश्रा में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, नए वाले ट्रिपल आईटीज, उस समय ट्रिपल आईटीज आ रहे थे जो एनआईटीज के कैंपस में ही एज फर्स्ट फ्यू इयर्स एकदम स्टार्ट हो रहे थे, और 1 और 2 साल ही हुए थे एग्जैक्ट। मतलब मेरा बैच अगर होता तो वो सेकंड ईयर होता, तो आई वाज नॉट श्योर कि वहां जाना है, एंड वहां के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। एक चीज और थी कि एक्सपोजर इतना कम था कि लगा कि क्या लोन किया जा सकता है, क्या वो 8 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज, तो मेरे को मन था, मैं फिर भी मेरे को मन था कि चलो बीआईटी मिश्रा चल लेते हैं, 12 लाख या कुछ लगते हैं। एंड माय फादर सेड कि नहीं पॉसिबल नहीं, नहीं लेंगे। एक बार ये भी आया था कि ड्रॉप ले सकते हैं क्या, दैट वाज आल्सो कि मतलब क्लियर नहीं कर सकते हैं, ना ड्रॉप ले सकते हैं, ना ऐसे कॉलेज जा सकते हैं जहाँ 12 लाख लगेंगे, और लोन भी ले सकते हैं, मतलब लोन लेके चुका लेंगे। तो उतना करेज भी नहीं था कि अगर 12 लाख, पता ही नहीं था कि पापा पे लोन नहीं लगेगा, हम अपने नाम पे भी लोन ले सकते हैं। वो एक चीज थी कि 12 लाख का एजुकेशन फीस होगा, 4-5 लाख और लगेंगे, तो 16 लाख। अब 16 लाख चुकाते कैसे ये भी नहीं पता था, चुकाना तो दूर की बात है, पहले तो तुम्हारा भी समय काम स्टार्ट नहीं हुआ था, तो पता नहीं था कि मतलब ढंग का करो तो कुछ जॉब लग जाती है फिर चुका सकते हैं। तो ये भी पता था कि कोलैटरल लगता है लोन के लिए, क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं पता था। हाँ, पापा को भी नहीं पता था, पर उन्होंने ऐसे डराया था कि उनको ही लोन मिलता है जिनके पास जमीन होती है, तो हमारे पास नहीं थी कुछ भी, तो वी डिड नॉट नो कि कैसे होगा। पापा ने कहा, एकदम क्लियरली बोला कि नहीं, कुछ भी हो, कुछ भी कर नहीं रहे हैं, ये तो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, फीजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लोगों के थ्रू एक कॉलेज का पता चला भोपाल में, LNCT, एंड उनकी उसकी फीस बहुत ही कम थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40,000 पर सेमेस्टर। उसके लिए फिर LNCT ज्वाइन करा। वी रिमेम्बर द डिस्कशन कि ठीक है ट्रिपल आईटीज का तो पता नहीं प्लेसमेंट्स होगा कि भी नहीं, बट एटलीस्ट इस कॉलेज का था कि प्लेसमेंट्स होते हैं यहाँ पे एंड फीस कम है, तो दैट इज व्हाई यू वेंट अहेड। एंड मेरा उसी टाइम पैरेलली वो एक केस कॉम्पिटिशन चल रहा था टाटा स्टील वाला, जिसके थ्रू आई सिक्योर्ड माई जॉब एक्चुअली ऑफ PPO ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई थर्ड ईयर। आई वेंट टू XLRI for the final round of that competition, and that very day the top 10 people they got a PPO, and उस time तो लगा like this is the biggest thing that can happen right now, because given that the families we come from, getting a good job, that too in a Tata Group company, that felt like wow, और क्या ही हो सकता है इससे अच्छा। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद बहुत चिल हो गया मेरा थर्ड ईयर। आई सॉ माई बैचमेट स्ट्रगलिंग टू प्रिपेयर फॉर द थर्ड ईयर के बाद वाली समर इंटर्नशिप, बट आई वॉज सुपर चिल, लाइक गोइंग फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ क्विजिंग इवेंट्स और क्लब्स एंड कमिटीज। और फॉर मी लाइक माई फर्स्ट ईयर स्टार्टेड, आई वॉज एज यू नो कि बहुत रियली डिस्ट्रेस्ड, मतलब आई डिड नॉट नो। वहां जाने के बाद तो और भी लगा कि दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर मी, मैं कहाँ गया हूँ। बिकॉज द थिंग इज कि जो भी मैंने कहा कि हमने देख देख के इंस्पायर हुए थे जिन चीजों के लिए, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। यहाँ लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट अ स्कूल। हमारे कॉलेज में लाइक यूनिफॉर्म होती थी, एंड आई वुड call her my parents. I remember those distress calls. And I was crying कि मैं कहाँ गया हूँ, लाइक मेरे को फिर से देना चाहिए, क्या करूँ, लाइफ खत्म हो गई। मतलब लाइक माइंडेड लोग नहीं है यहाँ, डिस्कशंस बहुत ही डिफरेंट है जैसे मैं सोच के आया था, या फिर वो तो पता था कि खराब हो गया है, बट अब करे क्या। पर फिर भी somehow वही जो स्कूल वाला था कि बस क्लास में अगर ध्यान दो तो लाइक ग्रेड्स अच्छे आते हैं, कि ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे थे। एंड फर्स्ट ईयर लाइक एंडेड लाइक दैट, एंड कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी नया नहीं सीखा, कुछ भी कोडिंग नहीं फर्स्ट ईयर में बेसिक। और हमारे कॉलेज में ऐसा कल्चर ही नहीं था। आई थिंक द डिफरेंस वाज कि क्लब्स नहीं है, कल्चर नहीं है सीनियर जूनियर का। हमारे यहाँ मतलब जब मैं किसी और से बात करता हूँ अच्छे कॉलेज का, एवरीथिंग इज कि वो उन्होंने सीनियर से सीखा, एवरीथिंग इज पास्ड ऑन फ्रॉम सीनियर। हमारे में वो खत्म, मतलब ऐसे एक्सप्लिसिटली मना था सीनियर से इंटरेक्ट करना। तो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन नहीं है, इट्स लाइक अ कॉलेज, यू गो एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डे स्कॉलर। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स गो बैक होम। तो कोई प्रोजेक्ट डिस्कशन या अपॉर्चुनिटी का डिस्कशन या एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा है। दिस इज आल्सो फॉर पीपल हु नाउ हैव लैंडेड अप इन अ कॉलेज दैट दे जस्ट कांट बेयर, दे फील आई कैन डू मच बेटर, बट नाउ फॉर व्हाटएवर सर्कमस्टेंशियल रीजन दे हैव लैंडेड अप इन दैट काइंड ऑफ कॉलेज। तो तुम, हाउ डिड यू कंट्रोल योर फीलिंग्स दैट okay, this is what it is, and like how did you handle that feeling? सेकेंड ईयर में जैसे ही कंप्यूटर साइंस स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट आए थे, एंड वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगते थे। एक चीज अच्छी चीज थी, तो अगर आप खुद से भी उन चीजों को सीख रहे थे तो यू वर इंटरेस्टेड। तो वर यू डूइंग द बैकग्राउंड होमवर्क कि जो अगर क्लास में अच्छा प्रोफेसर नहीं है बट टॉपिक क्योंकि अच्छा लग रहा है तो घर जाके अच्छा करता। प्लस राइट उस समय था, या और अब तो और बहुत ज्यादा गई, एज यू सेड कि और लोग के लिए क्या है कि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, कि मतलब DSA करना है फर्स्ट ईयर से, अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं भी जाते हो, वो लोग उस फील्ड में कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में, लाइक अपना कॉलेज और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है कि वो मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करो। तो बहुत एक्सपोजर और वो है। अगर सीनियर जूनियर इंटरेक्शन भी नहीं है, मान लो कि वही तुम्हारे सीनियर्स है जो पढ़ा रहे हैं, जैसे स्ट्राइवर है,
टेक यू फॉरवर्ड एक चैनल है, फिर अपना कॉलेज एक चैनल है, बहुत सारे चैनल्स है। इफ यू सी तो उनको ही अपना सीनियर मारो और फॉलो करो उनको। सेकंड ईयर में कुछ कुछ चीजें सीखी, हैकाथॉन से पार्टिसिपेट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है कि ऐप बनाएंगे जो ऐप रन फोन में रन होगा, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एक प्रॉब्लम है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का एंड यू आर प्रॉब्लम सॉल्व, तो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम, मजा आ रहा था। सेकंड ईयर खत्म होता है, ऑलमोस्ट खत्म भी नहीं होता है एंड कोविड हिट्स। होता है कि इस पे बिल्ड ऑन करते हैं हम लोग, डबल डॉन जैसी टीम बन गई है, 5-6 लोग एंड भी एक के बाद एक पार्टिसिपेट करेंगे। कोविड आता है एंड वी आर एवरीवन। आई हैव अ वेरी सिमिलर स्टोरी। तो बट उसके लिए एक साल पीछे आते हैं। तो आई टोल्ड यू कि थर्ड ईयर में वो हुआ, फिर थर्ड ईयर में मस्ती करी, फिर इतनी मस्ती कर रही थी तो रियलाइज हुआ कि नो, आई एम जस्ट वेस्टिंग टाइम, व्हाट कैन आई डू टू बी प्रोडक्टिव नाउ। ठीक है, मुझे एक और जॉब नहीं लेनी है, विच अगेन नाउ फील इज अ वेरी बिग मिस्टेक। Like, why did I get so complacent with that one job that I did not even sit for any kind of placements, any kind of case comms, anything else after that? मैंने कोडिंग छोड़ दी उसके बाद, even though I was in EC, and like I still feel कि एक ट्रेन तो छूट गई मेरी कोडिंग वाली। Then when I come to my fourth year या third year के एकदम एंड के आसपास, remember this dream जो पापा ने कभी बचपन में दिखाया था, so the best people go to IIT and then UPSC। तो because I had so much free time for the entire fourth year, मैं लाइब्रेरी में 9 बजे से 7 बजे बैठी हूँ। I just attended all my classes। इसके अलावा जो भी मेरा फ्री टाइम था, I used to sit in the library and study for UPSC। और ऐसा ही किसी को एक दिन था नॉर्मल, आई थिंक एंड ऑफ फरवरी या फिर मार्च 2020, एंड मैं पढ़ रही थी एंड देन वी गेट दिस न्यूज़ तो आने लगी थी, एंड आई एम मीटिंग माई बेस्ट फ्रेंड जस्ट आउट ऑफ द लाइब्रेरी, एंड वी आर लाइक कि अच्छा अभी भेज, एग्जाम्स था हमारा अगले दिन से, बट दे वर लाइक नहीं अभी घर जाओ, एवरीवन हैज टू वेकेट हॉस्टल्स एंड ऑल, एंड वी वर लाइक ठीक है एक हफ्ते बाद घर से आकर के मिलते हैं। वी नेवर केम बैक। आई ग्रेजुएटेड ऑन यूट्यूब, मेरा कॉन्वोकेशन यूट्यूब में हुआ, उसके बाद जॉब बहुत डिले हो गई, द जॉइनिंग ऑफ माई जॉब, एंड उसके बाद घर पे रहे। एंड दिस इज द पीरियड वेयर आई थिंक सबसे ज्यादा हमारी बॉन्डिंग हुई हमें से। वो जब कोविड के टाइम था, हम सब ऐसे महीनों तक घर में थे। आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर कि उसमें हमने कितना बात किया, कितना चीज़ें डिस्कस किया। मम्मी वॉज लाइक कि कुछ शुरू करते हैं, तो बहुत ही छोटा बिजनेस कि मम्मी मशरूम बेच सकती है या फिर वी कैन हैव अ कॉर्न बिजनेस। उसी का एक आइटरेटिव वर्जन था कि मम्मी ने फिर धीरे लास्ट में जाकर के एक अचार का बिजनेस स्टार्ट किया, वेयर now also she does that in a very close circle. She makes achar and she sells it to most locally, अपने friend circles में, friends of friends, relatives। फोटोग्राफी तो हो नहीं रही थी, तो लाइक मोस्टली मैं भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, वो भी नहीं हो रहा है। फिर कॉलेज में मेरे को याद है, वो कॉलेज के अगर फर्स्ट 2 years बात करें तो एक इंस्टेंस मेरे को याद है कि आई वुड इवन, मेरे को अगर एग्जाम के बीच में 10 days की छुट्टी होती थी तो आई वुड ट्रैवल, लेट्स से कि पापा या किसी और की किसी ने कोई वेडिंग ली है एंड झांसी में कोई वेडिंग हो रही है, दिल्ली में कोई वेडिंग हो रही है जहाँ से भोपाल ओवरनाइट ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर पटना, इवन ट्रैवल पटना, तो एग्जाम के बीच में टू शूट अ वेडिंग। तो आई इवन विविडली रिमेंबर दिस कि मैं एग्जाम्स के बीच में भी उस टाइम भी जितना हो पा रहा था मेरे से, मतलब आई थिंक दैट वाज आल्सो अ पीरियड वेयर आई थिंक आवर बॉन्ड हील्ड अ लिटिल बिट, बिकॉज हम बैठ के बात कर पाते थे एंड इट वाज द थ्री ऑफ अस, तुम, मैं और मम्मी। एंड फाइनेंशियली ऑल्सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज, क्योंकि आई हैड नॉट स्टार्टेड अर्निंग, लाइक फोटोग्राफी हो नहीं रही थी, एंड बिकॉज उतना टाइम मिला सोचने का, भाई वो समय था जब आई डिसाइडेड कि नहीं यूपीएससी नहीं करनी है, क्योंकि वंस आई डिड द प्रोज एंड कॉन्स वाला मैथ की अच्छा अगर हो भी जाता है, अगर बेस्ट केस सिनेरियो हो भी जाता है, तो व्हाट इज इट दैट माय लाइफ विल लुक लाइक, and what is it my life will look like if I don't do this and do some other things, be it उस टाइम तो MBA का नहीं सोचा था explicitly, but if I go on to do better private jobs, continue in the private sector, corporate sector, so what will my life be? And I realized that this option requires far too much courage, far too much that philanthropic या फिर social work वाला heart, जो कि मेरे में नहीं है। वो तो सेकेंड स्टेप है कि होगा नहीं होगा, जीतना पड़ा है, बट फर्स्ट स्टेप में ही मन में आ गया कि नहीं, आई नॉट कंटिन्यू। फिर जो मेरी 1 साल की फोर्थ ईयर वाली मेहनत थी यूपीएससी की, दैट आई विल नॉट से वेंट टू वेस्ट, बट उस बात से लाइक आई कंप्लीटली डिटैच माई सेल्फ। दिसंबर 2020 मैं थर्ड ईयर में था। थर्ड ईयर मेरे लिए थर्ड ईयर एंड्स एंड ठीक था, वो घर से हो रहे थे एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे, एंड फोर्थ ईयर स्टार्ट होता है लाइक आई थिंक जून जुलाई में, एंड जुलाई मोस्ट ऑफ मेरे पूरा बैच ही प्लेस हो जाता है। एक आध मतलब इट वाज अ बूमिंग टाइम जैसा भी था, मल्टीपल ऑफर्स, मतलब कुछ सर्विस बेस्ड, कुछ एकदम मास हायरिंग वाली कंपनीज में हुआ था, मल्टीपल, एवरीबडी हैड 3-4 ऑफर्स एटलीस्ट, नॉट ग्रेट बट 3-4 ऑफर्स एटलीस्ट। ये जून जुलाई अगस्त में ही ये ओरेकल हो गया था, एंड फिर उसके बाद फिर प्लेसमेंट में बैठने नहीं दिया गया था। ओरेकल से भी आई वाज खुश की मतलब पैसे मिलेंगे, मतलब और प्लस नाम भी था, नाम ब्रांड नेम था, और फिर लगा कि पैसे मिलेंगे, मतलब अपने खर्चे निकल जाएंगे, लाइक सपोर्ट कर पाएंगे।
Were you thinking of money that time? Yes, क्यों नहीं, मतलब कि अगर एक तो पिक्चर होता है ना कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो मतलब ऐसे प्लेसमेंट्स पॉसिबल है, बट फिर होता है कि मेरे अराउंड सराउंडिंग उस टाइम बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं, मतलब वही उसी मेरे कॉलेज में वैसे ही प्लेसमेंट्स आ रहे थे, मेरा 7 LPA के अराउंड था, तो उसी टाइप के प्लेसमेंट से 7, 8, 4.5, 5, 6 इसी अराउंड थे। एक जिन्होंने मोस्टली अच्छे रोल्स किए थे उन्होंने ऑफ कैंपस लिए थे, एंड उसके एंड में वॉलंटियरिंग करी थी मंत्रा में, उसी कॉलेज के फाइनल ईयर में मैंने 1 महीना, मेरे को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, आई गॉट टू एक रील देखा था सर्फिंग का, एंड ऐसी कोई चीज हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स का कोई एक्सेस नहीं था, बट ऑलवेज इंटरेस्टेड, क्रिकेट खेला था, स्पोर्ट्स खेलता था। एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप फ्री में रह सकते हो 1 महीने, एंड यू हेल्प देम आउट इन सम वे, आप क्लीनिंग में हेल्प करो, कुकिंग में हेल्प करो, फोटोग्राफी में हेल्प करो, एंड यू कैन लर्न सर्फिंग। तो आई वाज लाइक कि टाइम, इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता है, एंड समहाउ दे सेड कि अगर कैमरा है, लाइक वी नीड अ फोटोग्राफी वॉलंटियर, वी डोंट नीड अ कुकिंग और ऐसा वॉलंटियर, if you can come, if you can have a camera and a bigger lens, जिससे like bigger zoom, तो come to us, तो एक टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, this is an opportunity of a lifetime, with time, with everything। तो फिर मैंने वो लेंस बाय करा and I went to volunteer at Mantra, and that 1 month was life changing, मतलब उस लाइफ, उससे पहले लाइफ, उसके बाद was different। Now coming to my life where I've just joined Tata Steel। शुरू में तो like 5-6 months we had the MTT period, which is the management training period, वो chill था, वो ठीक ही था, ट्रेनिंग्स करनी होती थी, अलग अलग प्लांट्स में हमें इंडक्शंस होते थे कि ये प्लांट में ये काम होता है, पूरा सप्लाई चेन समझो, वैल्यू चेन समझो, दैट वाज फाइन। एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि पहली बार पैसे मिल रहे थे, तो आई नेवर से एवर स्प्लर्ज्ड। उस समय भी मैं बहुत कंजूस थी जैसी अभी हूँ, बट फिर भी दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट। आई रिमेम्बर पहले सैलरी से मम्मी पापा को तुम्हें शॉपिंग कराने लग गई थी, पहली बार हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया रांची में, और ये सब छोटी छोटी चीजें, बट वो हो गई। उसके बाद तो फिर आई स्टार्टेड सेविंग ओनली, कि जो मैंडेटरी खर्चे हैं वो बस करूं, और उसके अलावा एवरीथिंग वाज जस्ट आई वाज सेविंग। एंड उसी टाइम पहली बार इन्वेस्टिंग भी शुरू किया इन द स्टॉक मार्केट, इन म्यूचुअल फंड। सो दैट वाज अ टाइम व्हेन वो फाइनेंस की फ्रेंजी थी, हमको भी बहुत इंटरेस्ट आया था। आई वाज आल्सो, हमें से टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, हमने बहुत कुछ सीखा था उस टाइम। सून वंस द ट्रेनिंग पीरियड एंडेड, उसके बाद फिर जब रियल जॉब स्टार्ट हुआ, व्हेन आई बिकेम अ मैनेजर ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ प्लांट, एंड द शिफ्ट स्टार्टेड एंड द डिपेंडेंसी, द अकाउंटेबिलिटी स्टार्टेड, कि प्लांट में कुछ भी गलत हो रहा है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, एंड रिस्पॉन्सिबल से ज्यादा यू हैव टू मेक श्योर दैट इट वर्क्स फाइन, मेंटेनेंस टाइम पे हो रहा है, देयर इज नो ब्रेकडाउन, देयर इज नो डाउन टाइम। And that after a point started to get very overwhelming, because Saturday Sunday भी आपको calls attend करने हैं, कि रात का 10 बजा है, if something breaks down you have to attend it। मेरा phone I remember कि मतलब तुम्हें सुबह का 3 शिफ्ट कॉल्स आएंगे, and you have, मतलब पहले 6 बजे आता था, 6 बजे, 2 बजे, 10 बजे, 6 बजे ऐसे सुबह तुम्हें ऐसा होता था कि तुम्हें उठना है, सुबह कॉल उठाना है, वो शिफ्ट कॉल लेना है, फिर नोट डाउन करना है कि क्या गलत हुआ, ताकि उस फिर once I go to office में उसको ठीक कर सकूं and all that। एंड वो फिर रात को भी होगा एक शिफ्ट कॉल, फिर तुमको रात में अगर काम से आ भी गए तो यू हैव टू बी समहाउ इन्वॉल्वड उस काम में। I did not feel like this is aligned with how I see myself, how I envision my life। तो क्वेश्चंस तो आने लगे थे दिमाग में, और फिर उस टाइम थोड़ा रिसर्च किया, एंड एलिमिनेशन से वही डिसाइड किया कि कैट विल बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर कैट। लाइक वी मेड अ एक्सटेंसिव वीडियो अबाउट माय कैट प्रिपरेशन, कि कैसे पढ़ा जॉब के साथ एंड ऑल दैट, बट हाँ, somehow by God's grace performed decently well in CAT 2021, और उसके बाद फिर इंटरव्यूज भी दिए, and I made it to IIM Bangalore in my first attempt, which was, I know, a very big part of it was luck, but it worked out in my favor। Yes, and then 2022, like when I graduated, same time you started your college। Yes, you started working and I went to IIM Bangalore। But the thing was that yours was a 100% remote job। my job, like starting out it was 100% remote job, तो 6 months I was at home। फिर मैं फिर I was like कि कंपनी से बोला गया कि like come to Bangalore, भले ही वहां जाके फिर करके भी घर से ही काम, like I was working from home, but फिर Bangalore शिफ्ट हो गया 2022 में ही, 2022 दिसंबर में, and then after फिर like you stayed in a PG, I was on IIM Bangalore campus, and life is very different, इतनी comfortable life, इतनी facilities, so many people around, it's a very different life altogether inside of the school that you and different way मेरे लिए भी थी, क्योंकि पहले पैसे नहीं थे, and everything that you now wanted, छोटी छोटी चीजें जो चाहिए थी कि ट्राई करना, ये इंटरेस्ट है कि नहीं, पसंद कोई भी चीज इंटरेस्ट की थी, you could buy it।
सो यू कैन सी कि इसमें इंटरेस्ट है, अपना इंटरेस्ट गॉज कर सकते थे, छोटी छोटी जगह जा सकते थे, मन किया तो कुछ अच्छा खा सकते थे। वो चेंज हुआ मेरे लिए भी व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, मतलब अच्छे से, मतलब आई यूज्ड टू अर्न, पहले भी पैसे होते थे क्योंकि फोटोग्राफी वाले पैसे कुछ मेरे को ही मिलते थे, इससे थोड़े अच्छे अमाउंट में आए कि थोड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं कुछ, किसी को हेल्प कर सकते हैं कुछ। मैं कैंपस भी जाता था कॉलेज फेस्ट में, या कोई भी बड़ा इवेंट है, या ऐसे ही भी रियलाइज कुछ शूट करना है, कुछ भी शूट्स भी किए हमने, बहुत शूट भी किए साथ में। एक दो मोस्ट ऑफ देम लाइक जितना भी हमने शूट किया वो बाहर नहीं आ पाया क्योंकि फिर एडिट करने का उस टाइम उतना अक्ल नहीं था। But yeah, we have a lot of footage of IMB that maybe we can use somewhere. I'll make a detailed video about my life at IMB और क्या-क्या सीखा, क्या-क्या किया, all of that. Plus exchange was that once in a lifetime opportunity जिसमें पहली बार I was in Europe and उससे पहले थोड़े पहले कंटेंट स्टार्ट हुआ हमारे लिए कि she was like recording some things and कुछ धीरे-धीरे रिया ने ही एडिट करना स्टार्ट किया था VN पे, and थोड़ा बड़ा अगर हेल्प हो पाया तो करते था, मतलब कुछ एडिट कर दिया, कुछ ऑडियो सिंक कर दिया, ये कर दिया। एंड देन 2023 में थोड़ा सा एडिट हमने स्टार्ट किया, लॉन्ग फॉर्म भी कुछ वीडियो शूट किए, फिर जब इसके एक्सचेंज पे जाने की बात हुई तब वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड टू टेक इट अ लिटिल सीरियसली कि कुछ प्लान करते हैं। उससे पहले शी वाज सब कुछ ये खुद ही कर रही थी, सब कुछ ये कर रही थी, एंड वो भी कुछ ऐसा रैंडमली कर रही थी, जो इसको पसंद आ रहा था, नो आइडिया कि ये मोनेटाइजेबल चीज है, क्या यूज होगा किसी के लिए। शी वाज रिकॉर्डिंग इट फॉर हरसेल्फ। व्हेन आई वाज गोइंग ऑन एक्सचेंज तब लगा कि नहीं कुछ, दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। एंड उस समय एक मंकी मैजिक की सीरीज आई थी, 100 days की कोई सीरीज आई थी, एंड शी वांटेड टू रेप्लिकेट समथिंग लाइक दैट। सो आई स्टार्टेड 50 days ऑफ एक्सप्लोरिंग, एंड जो भी मतलब इन वट एवर स्टोरी टेलिंग वे आई कोड, मैंने जो रिकॉर्ड किया था सबको एक स्टोरी लाइन में बिल्ड करके I put out that series 50 days of exploring. So that was like I really enjoy watching those videos even now. Kabhi bhi. Yes. I enjoyed editing it. This was 2023. Right about August, मेरे को घर आना पड़ा था क्योंकि पापा का एक्सीडेंट हो गया था, और फिर 2-3 महीने उसी में लग गए, और सितंबर अक्टूबर हॉस्पिटल्स में ही बीत गए। एंड आई वाज अबाउट टू राइट कैट इन 2023। तो थोड़ा सा प्रिपेयर कर पाया हो हॉस्पिटल के साथ, क्योंकि पहले तो करा नहीं था क्योंकि काम में बिजी थे, फर्स्ट ईयर तो सीखने में ही टाइम लगा अच्छे से। कैट दिया, इट डिड नॉट गो वेल, उस समय काम भी हेक्टिक हो गया था, एंड इट डिड नॉट गो वेल। फिर आगे बढ़ा, फिर काम कर रहा था, काम वाज आल्सो हेक्टिक। मतलब जनवरी से ही मेरी सऊदी अरेबिया जाने की बात शुरू हो गई थी मेरी कंपनी से। फिर मई में आई ट्रैवल टू रियाद, वहां पे अप्रोक्सीमेटली कुछ टाइम रहे, एंड देन आई डिसाइडेड टू क्विट, केम बैक इंडिया, एंड देन फिर यहाँ बैंगलोर में वी शिफ्टेड टुगेदर, साथ रह रहे थे, एंड वी प्लान की कंटेंट अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से कंटेंट अब करते हैं। Yes, for this past 1 year from July 2024 till today, which is May 2025, this past 11 months have been me working, him preparing for CAT, और उसके बाद फिर ideating, coding, shooting content, editing, and जो भी थोड़ा बहुत कर पाए। उसके बाद enjoy भी बहुत करा हमने यहाँ पे, मतलब like थोड़ा healthy होना and stuff like that, gymming regularly, and फिर CAT दिया, it worked out well at a stage कि अब IMB convert हुआ, and but we are again going to be in the same city, so that's the good part. This has been our journey. I know some parts of it were very emotional, but at least मैंने तो कभी अपने personal life के बारे में बात नहीं की है, but I feel that's necessary to know a person to, but sometimes relate करने के लिए may be helpful हो, and if not for anything else, we want this for ourselves, we want to talk, and I think बहुत सारी स्टोरी लाइन्स इसमें कवर भी नहीं हुई है, like what all can you cover, इतने 25 years of two people, दो लोगों की 25 साल की जिंदगी तुम इतने देर में कवर नहीं कर सकते हो। जर्नी कैसी रही है कि everybody looks for examples, जैसे हमारे लाइफ में भी हमने हमेशा अपने आसपास अगर किसी को एग्जाम्पल के तौर पे देखा है, and they have achieved what we wanted to achieve, या कुछ भी वैसा, तो अगर एक भी एग्जाम्पल होता है तो इट सीम्स पॉसिबल। बिल्कुल। एंड अगर रिया किसी के लिए एग्जाम्पल हो सकती है तो ऋतिक, and our life, not just we as individuals, but the life की, ठीक है, even after coming from a lot of economic hardship, if you work hard when you are required to, if you do a few right things, तो overall आप जहाँ से स्टार्ट किया था आप उससे बहुत आगे पहुंच चुके होंगे। यू वुड हैव बिल्ट अ लाइफ फॉर योरसेल्फ दैट यू आर प्राउड ऑफ, एंड आप अपने आसपास वाले लोगों को भी अपलिफ्ट करने के लिए थोड़े से सक्षम होंगे। तो सबसे पहले तो यू हैव टू अपलिफ्ट योरसेल्फ, बट दैट ओनली गिव्स यू द एबिलिटी टू help others. And फिर बाद में you'll see कि सारे डॉट्स जो आपको भी हार्डशिप्स लग रहे हैं वो कनेक्ट भी होते हैं। लाइक इफ आई सी माई लाइफ, काम कर रहा था, मुश्किल लगता था, जितनी भी चीजें थी, जो चीज द थिंग्स दैट वर्कड आउट, द थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, आई एम नॉट सेइंग कि इट हैपेंड फॉर गुड, मतलब ऑल ऑफ इट आई स्टिल डोंट बिलीव हैपेंड, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड फॉर गुड, बट कुछ चीजें वीडियो एडिटिंग और इन चीजों का एक्सपोजर नहीं था, मे बी वी वुड नॉट हैव गॉन ऑन, इतना ईजी हमारे लिए इसमें स्टार्ट करना नहीं होता, बैकग्राउंड में इट वुडंट हैव बीन दिस ईजी। एंड कॉन्फिडेंस जो हम लोग को, एटलीस्ट मेरे को ये मेरे फोटोग्राफी का स्किल देता है कि एनी डे एनीथिंग बैड हैपेंस,
I have something to fall back on. मतलब कहीं भी जाऊंगा I can ask, एक कैमरा ले लो और मैं शूट कर सकता हूँ. तो इन जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, जैसे like थोड़ा ऐसे पॉवर्टी में बड़े होना, हम ये भी बात करते हैं, we talk a lot of times कि that is an advantage. मतलब poor has been an advantage क्योंकि we can take few risks जो हम देखते हैं हमारे पीयर्स मतलब बहुत डरेंगे उस चीज को लेने में, क्योंकि वी डोंट नो ऐसे एकदम स्ट्रक्चर्ड करियर्स कि मतलब ऐसा ही होना चाहिए, इसके बाद ये यू कांट क्विट अ जॉब, यू हैव टू फॉलो अ स्ट्रक्चर. हमारे लिए करियर डज नॉट मीन दैट. हमारे लिए करियर होता है कि उस समय पैसे हैं, उस समय जो सही लग रहा है, एंड हाउ डू यू सी मतलब अपने लिए अपने आप को अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड देन गो अबाउट इट. बिकॉज देयर इज नो लाइफस्टाइल जो मेंटेन करनी है. हमने जो देखा है कि बस प्लेट पे खाना आ जाए उतना तो हम कर लेंगे, तो उसके अलावा एनीथिंग दैट कम्स अबव दैट वी कैन रिस्क दैट. अगर कुछ लगे कि इट्स अ शॉर्ट वर्थ टेकिंग तो दैट वी कैन टेक दैट. एंड हम लोग ऐसे जितना सोचते हैं कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेट भी नहीं करना है, एंड एट मैक्स अगर एवरीथिंग गोज बैड, एवरीथिंग मतलब जो भी है वो चला जाए, व्हाट इज द थिंग दैट वी रिक्वायर? 1-2 रूम रहने के लिए, एंड देन होता है ना वहां से रुक के फिगर आउट करने के लिए, एंड फूड, एंड इट आई डोंट थिंक दैट मतलब इज वेरी कॉस्टली. तो एंड दैट कम्स फ्रॉम आवर अपब्रिंगिंग, दैट्स व्हाट कम्स फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन कि इट्स स्टिल ओके. या वहां से ही आए तो वहां से वी कैन मे बी लाइक फिर वी कैन स्टार्ट अगेन, एंड देन थोड़ा सा रिस्क लेके कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग कि वो हम लोग को पुश भी थोड़ा ज्यादा करता है, क्योंकि डिफरेंस इतना बड़ा है, तो यू वांट होता है ना कि व्हाट यू से कि डिफरेंस इतना बड़ा रहा है तो यू जस्ट वांट टू कीप ग्रोइंग. You want to close the gap as much as you can. कि okay, I may not belong to the same economic standard as my batchmates. वो starting point थी. But अब if I work really hard, तो maybe वो generational gap में एक gap तो कम कर सकती हूँ. हाँ, anybody who's like थोड़ा भी relate किया हो हमारे situation से, one more thing that I would like to say कि it is real. मतलब वो जो problems होते हैं वो generational gap वाला problems की, जो जैसे हमारा condition था, या food was luxury, जैसे हमारे लिए food was luxury, तो वहां से and you are having peers even in engineering, or let's say you go for an MBA and any place that you go, तो वहां पे होगा कि जहाँ पे उनके पेरेंट्स है, मे बी यू आर ट्राइंग, अभी होता है ना इस जनरेशन में तो उतना ही कवर कर पाओ. आपका बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि आप उनके पापा के जितने या दादा के जितने लेवल पे आप. हाँ, हमारा बेस्ट केस सिनेरियो एट टाइम्स लगता है मतलब विजिबिलिटी. एक घर, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर अस द बिगेस्ट थिंग दैट एक्चुअली इज आवर ड्रीम इज टू हैव अ हाउस, एंड फॉर पीपल वी नो वो उनको घर के बारे में सोचना भी नहीं है. हाँ, तो ऐसा फील यू आर नॉट अलोन कि फील करते हो कि लाइक योर पीयर्स, हमारा बेस्ट केस आउटकम उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बराबर आने का है, बट स्टिल मतलब होता है ना कि हम वी आर ट्राइंग कि वो एक तो पहले वो जनरेशन गैप कवर हो उनके पेरेंट्स का, एंड मे बी उनके साथ मतलब उनके बच्चों के साथ जो हमारे पीयर्स है शायद उनके साथ आ पाए हो, या फिर और अगर थोड़ा ट्राई करे तो उनसे भी बेटर. आई विल लाइक टू एंड दिस ऑन दिस पॉजिटिव नोट कि there is hope, and if we keep trying मतलब excesses control कर ले, and you do the right things, control the negatives, do not go in excess of anything, there are very high chances that you will build a good life for yourself. Okay, अभी बहुत ज्ञान हो गया. Let's do one small quick fun section and we'll do a rapid fire, और इसमें both of us will ask each other a question, and जो सबसे पहले मन में आता है वो बोलना है. So the first question is, who's mom's favorite child? I think me. Yes. Because मम्मी इसको ज़्यादा प्यार करती है, इसको बहुत he's been pampered in whatever way she do. Who is more likely to cry in a movie? Surely her. She's like, she does not even need a movie to cry. She just wants to cry, and she can cry at will. Yes, she can cry at will. I can cry at will, like कुछ भी. Describe a sibling in one word. You go first. Very hard working. No. Okay, for you I had Gyani Baba. What one thing you admire about each other? I go first. Okay. Your thoughtfulness, कि हर एक चीज को एकदम डेप्थ में जाकर के समझना कि अगर ऐसा होगा तो उसको कैसा लगेगा, या किसी चीज का क्या इम्पैक्ट करेगा. So you think very deeply and you're very thoughtful. Okay, for me it would be कि जो मेरे मिसिंग है, जो मेरे को तुम में दिखता है, कि you get the work done. So now after the good stuff, what is the one thing that your sibling does that annoys you to the core? You go first. She's very controlling. You are very judgy. If we could swap our lives for one day, what would you do as the other person? Then I'll call mom and be like कि आज तक हम तुमको जिंदगी में रिया के बारे में जो भी बुरा बताया वो सब झूठ था, रिया सच में बहुत अच्छी लड़की है. Because I know you and Ma bond over how like the mistakes I make. Trauma ऐसा होगा ही. हाँ. What's the best memory that you have with me?
I have a very clear answer to this. Like, बोलो। for me it's कि बचपन में हमारी साइकिल पे हम घर से गेट तक जाते थे चाउमीन खाने, मतलब आते वक्त हम चलाते थे, तुम पीछे बैठता था, फिर जितना भी हमारे पास 5 हमने 10 रुपए की नूडल्स भी खाए, नूडल्स और चिली, और बिल्कुल एकदम छोटे से ठेले में, तो जाके वो खाना, फिर आते वक्त एक्सचेंज करना कि जो आते वक्त चलाया था वो पीछे जाते वक्त पीछे बैठेगा. And now I think in this phase of our lives it is us going on a bike ride to eat something. So that I think is my favorite thing. फूड से रिलेटेड अब वैसे तुमने बोला तो मेरा भी होगा. क्या रिमेंबर वो 5 रुपए वाली छोटी मैगी आती थी, एंड वी यूज्ड टू ईट हमारे लाइक हमारे लिए लाइक दैट वाज द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि उसके साथ हम रोटी खाते थे, तो वो हमारी सब्जी की जैसे अगर सब्जी नहीं बन रही है किसी दिन तो हम रोटी और मैगी रोटी खाते थे, एंड उसको डिवाइड करना वाज लाइक कि थोड़ा सा ज्यादा. एंड फिर व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू मी इज क्योंकि वो बहुत पर्सपेक्टिव देता है मेरे को लाइफ में, क्योंकि अब मैं एक मैगी अकेले नहीं खा सकता, मतलब कभी नहीं खाता, तो एक मैगी मेरे से आधा नहीं खाया जाता है, एंड तो वो समझ आता है कि द फन या जॉय जो भी था उसमें वाज नॉट द मैगी, वाज नॉट इट, बट हैविंग टू शेयर करना, उसको शेयर करना. अभी भी जैसे शेयर करो तो ठीक लगता था ना, कि उसकी स्कैरसिटी में ही उसका मजा था. उसकी स्कैरसिटी में उसका मजा था. वो अभी भी 10 या 5 रुपीज की आधी मैगी बनाते हैं हम, और उसको जब शेयर करते हैं तो लास्ट में मजा आता है. बट अगर आप 2 बना लो, जैसे कितनी भी मैगी खा सकते हैं आप, बट कोई फन नहीं है, कोई मजा नहीं आता. एंड सेम इज विद मोमोज. एक प्लेट मोमो में हाफ खाओ तो अच्छा है, द मोमेंट वी टेक 1 प्लेट ईच फिर मजा नहीं आता है. एंड वो लास्ट मोमो में ही कोई हाफ शेयर करने में मजा आता है. So this is all we had for you guys in this video. I hope you guys either took something or just enjoyed our conversation, and we hope to do more such videos in the future. And if you like them, do like, comment, and let us know what you think. We love reading your comments. Bye bye. Thank you.